3 خطرناک ایسے اسکیم جو کسی بھی فریلانسر کے کیریئر کو خراب کر سکتا ہے جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ایز اے بگنر۔ تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ ان ساری اسکیم کے بارے میں جان سکیں جو آپ کو ڈیمیج نہ کر پائے۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوں جمشید رضا فریلانسر ٹیوٹوریل کی جانب سے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ان ساری اسکیم کے بارے میں پڑھیں گے یا سمجھیں گے جس کو فریلانسر میں کیا جاتا ہے۔ فریلانسر میں جب آپ بگنر کے طور پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے ایسے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی ہی پروجیکٹ کے حساب سے آپ کو اسکیم کرتے ہیں۔ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑتا ہے، بعد میں آپ افسوس کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے بارے میں آج بتانے کی کوشش کروں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو کوئی اسکیم نہیں ہوا ہے تو آپ خوش نصیب انسان ہو، اور اگر ابھی تک آپ کو اسکیم ہوا ہے تو آپ ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا بلکہ اپنے کام کو اسٹارٹ کرنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کوئی بھی کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے پیسے ڈپازٹ کر دو سیکیورٹی فی کے حساب سے، اور بعد میں جب آپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو آپ کی فی واپس کر دوں گا۔ یہ ہے اس کی ایک اسکیم، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کلائنٹ آپ کو پیسے مانگنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ایز اے ورکر، ایز اے امپلائر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیسے دینا ہے، جو یہ کمپلیٹ رانگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں نے پہلے سے ہی ویڈیو بنایا ہے جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کے لیے ایکسپلین کروں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کلائنٹ نے آپ سے کام کروانا ہے، کیا آپ کو سیکیورٹی لینا چاہیے یا اس کلائنٹ کو سیکیورٹی لینا چاہیے جو کہ کچھ بھی نہیں کرتا؟ یعنی کہ کام آپ بھی کریں گے، آپ نے کام کرنا ہے، کیا پتہ ہے کہ وہ آپ کے کام کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، بعد میں پیسے دے گا یا نہیں دے گا، الٹا وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس کو اگر سمجھنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں، کیا آپ ایڈوانس میں کچھ پیسے رکھ کے اس کو کہتے ہیں یہ چیز میں نے خریدنا ہے بعض چیزوں میں، اور بعض چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں سامان کو دیکھنے کے بعد پھر پیسے دیتے ہیں، پھر پیسے کے بدولت آپ کو وہ سامان مل جاتی ہیں؟ اگر یہ سمجھے کہ آپ دکاندار کو کہو کہ بھائی مجھے آپ پیسے دے دو، کیا پتہ ہے کہ کل آپ اس سامان کو بیچنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو، تو سیکیورٹی کے طور پر آپ مجھے پیسے دے دو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ سامان بیچ دو یا نہ بیچ دو۔ تو دکاندار آپ کو کیا کہے گا کہ پاگل ہوئے ہو کیا میرے بھائی، جاؤ باہر جاؤ، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسکیم بالکل ان لوجک، جس میں کوئی بھی لوجک نہیں ہے، جس کو آپ کو سمجھنا ہے، اور آپ نے پیسے ڈپازٹ نہیں کرنا ہے۔ اس سوال کے بارے میں میرے بہت سارے سبسکرائبر نے پہلے سے ہی کہا ہے، جس کی بہت سے میں نے اپنی جو پریویس ویڈیو ہے اس سے ان اسکیم کے بارے میں نے نشاندہی کیا تھا، اور وہ تھینک فل بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس میں 90% میں صرف 10% ایسے ہیں جو بغیر دیکھے اور سمجھے یہ کام کر لیتے ہیں، اور وہ بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی فرسٹ اسکیم۔ سیکنڈ اسکیم کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا شکار میں بھی ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا تقریباً $150 یعنی کہ $150 میرا جو ہے اس میں اسکیم کی وجہ سے میں نے ضائع کیا، ٹھیک ہے، جو ابھی مجھے میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ اس اسکیم سے بچ جائیں۔ اس اسکیم میں کیا ہے کہ کلائنٹ آپ کو بالکل پیسے دے دیتے ہیں، آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ بھی کر دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اپنے فریلانسر اکاؤنٹ میں کہ پیسے ابھی موجود ہے، جیسے میں ابھی آپ کو اپنی اسکرین میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر میں ایک بار ریفریش کر دوں اور آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر میرے پاس جو پیسے ہیں وہ بالکل شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پیسے شو ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھ لیں اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ کیا ہے، $12 ہے، ٹھیک ہے، یعنی $12 میرے اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی کلائنٹ مجھے پروجیکٹ دے گا، پروجیکٹ میں کمپلیٹ کروں گا،
कंप्लीट करने के बाद वो क्या होगा यहाँ पर शो होगा, ठीक है। मतलब ये पैसे फ़िलहाल मेरे बैंक अकाउंट में नहीं गया है, यानी कि ये फ्रीलांसर में ही मौजूद है, लिहाजा इसको अप्रूव होगा, मतलब 2-3 दिन जब आप इसको विड्रॉ करेंगे 2-3 दिन के बाद क्या होगा, आप पैसे को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप पैसे को हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि फ्रीलांसिंग चेक करता है कि जो पैसे आपने कमाई किया है क्या वो लीगल है, क्या आपने किसी वर्क की बदौलत किया हुआ है या किसी एक्सचेंज के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मैं आपको डॉलर दूंगा, आप मुझे रुपीज़ दे दे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ, मेरे पास क्या है, पैसे है फ्रीलांसर में, मैं कहता हूँ कि मैं आपको पैसे फ्रीलांसर में एज अ प्रोजेक्ट दूंगा, तो आपने मुझे इजी पैसा करना है। तो क्या होगा, फ्रीलांसर बाद में जब आप कंप्लीट करेंगे आपको पैसे भी मिल जाएगा, लेकिन आप जब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो उस वक्त आपको फ्रीलांसर आपके अकाउंट को रोक देगा और आपको पेनल्टी करेगा, और जो पैसे आपने कमाई किया हुआ है या एक्सचेंज के तौर पर आपने लिया था उस पैसे को आपको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, और उसके अलावा आपको नेगेटिव बैलेंस के तौर पर भी मिल जाएगा, जो बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटमेंट की तौर पर आप इसको फिर बाद में फ़ील कर सकते हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, मैं अपनी स्टोरी करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ था कि एक बंदे ने आया, कहा कि मुझे पेयूनियन में पैसे चाहिए, मेरे पास पेयूनियन में पैसे था, ठीक है। अगर आपको पेयूनियन कार्ड अभी तक आपने नहीं बनाया तो जल्दी से बनाएगा, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाके आप रजिस्टर कर ले, ठीक है। फिर फर्स्ट रजिस्टर पर आपको $20 $25 आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, तो इसमें दोनों को बेनिफिट है, तो आप रजिस्टर कर ले जाके अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है, ठीक है। तो क्लाइंट ने क्या कहा था कि मैं आपको पेयूनियन में आपने यानी कि मैंने क्लाइंट को पेयूनियन में पैसे भेजना है और वो मुझे पे करेगा फ्रीलांसर के अंदर। मैंने कहा ठीक है, इसमें तो कोई भी मसला नहीं है, मतलब उसने मुझे लालच क्या दिया, ठीक है। उसने कहा कि मैं पेयूनियन में आपको मतलब 150 पे करता हूँ, आप फ्रीलांसर में मुझे $100 या $100 मुझे पे कर दे। मैंने कहा तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, मतलब वजह क्या है, रीज़न क्या है कि आप इस तरह कह रहे हैं। तो क्लाइंट ने मुझे कहा मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए जिससे मुझे अभी निकलवाना है, मतलब पेयूनियन में आप अर्जेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो पैसे ले भी सकता है, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसर से कोई, आपको पता ही है फ्रीलांसर में एक प्रोसेस लगता है, जब आप पैसे को विड्रॉ करते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं जाता, उसकी प्रोसेस तकरीबन 1 हफ़्ता, बाज़ 3 दिन, बाज़ जो फर्स्ट आप विड्रॉ करते हैं वो 15 दिन तक हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं कर देता हूँ। जब मैंने ट्रांसफ़र किया पैसे, उसने प्रोजेक्ट मुझे फ्रीलांसर में प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया, मतलब ऐसे ही टेक्स्ट के तौर पर मैंने कंप्लीट करवाया और उसने मुझे 150 दे दिया। मैं खुश ही खुश, ठीक है, कि $100 में मुझे $150 मिल गया, इससे और क्या बड़ी बात है, ठीक है। मतलब काम भी ना करो, पैसे भी मिल गया। तो जब मैं शाम सो गया और सुबह को उठ गया तो देखा कि मेरे अकाउंट पे -$50 लिखा हुआ था। मैंने कांटेक्ट किया फ्रीलांसर वालों से, तो फ्रीलांसर वालों ने मुझे ये कहा कि वो बंदा जिसने आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसने किसी ही हिसाब से क्रेडिट चोरी किया था, उस क्रेडिट में से आपको पैसे ट्रांसफ़र किया है। तो वो बंदा जिसका क्रेडिट था उसने क्लेम किया है वापस, क्योंकि बाहर के अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं, फिर वो क्रेडिट में वापस जाता है, ठीक है। तो हमने वापस पैसे को होल्ड ऑन किया हुआ है और आपके अकाउंट से काट के वापस भेज दिया है। तो मुझे एकदम शौक लगा कि चलो चार्जेस अलग, ठीक है, जो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया 150 का तकरीबन आपको $10-15 उसकी चार्जेस है, ठीक है। -$50 मुझे वैसे ही पेनल्टी किया, और $150 जो मैंने भेजा था वो भी ज़ाया हुआ, सब कुछ चीज़ों का बेड़ा गर्क हुआ। तो आपने कभी भी इस तरह नहीं करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट को देखा हुआ है जो कहते हैं कि मैं बिटकॉइन, मुझे आप बिटकॉइन दे दे, आप मुझे स्क्रीन में पैसे ट्रांसफ़र कर दे, आप मुझे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दे। आपने आउटसाइड ऑफ फ्रीलांसर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो स्कैम होगा, फिर आप बाद में ख़ुद परेशान होंगे। तीसरी स्कैम ये है कि अगर जब भी आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं या बीट करते हैं, ठीक है, बीट के फ़ौरन बाद आप देखते हैं कि आपको अवार्ड हुआ है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इस अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है।
जैसे ये बंदा है, ठीक है, इसने मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड किया था, तो अवार्ड करने के बाद इसने मुझे माइलस्टोन क्रिएट नहीं किया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास है, देख ले यहाँ पर माइलस्टोन रिलीज्ड है, मतलब माइलस्टोन क्रिएटेड भी होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, क्रिएटेड माइलस्टोन, ठीक है। तो $10 का माइलस्टोन क्रिएट किया हुआ है, अवार्ड किया, माइलस्टोन क्रिएट किया, बाद में मैंने क्या किया है, मैंने अवार्ड को एक्सेप्ट किया। तो हमारे बिगनर्स फ्रीलांसर क्या करते हैं, हमारे बिगनर फ्रीलांसर, इसमें बहुत सारे हमारे स्कैमर्स हैं कि वो आपको, जो नए हैं, आपको डिसअपॉइंट करके इस प्लेटफॉर्म से आपको दूर करवाना चाहता है। क्यों दूर करवाना चाहता है? क्योंकि जितनी कंपटीशन कम होगा उस बंदे के लिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होगा। तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड होगा, तो अवार्ड होने से पहले आपने क्या करना है, उसे कहना है कि माइलस्टोन क्रिएट कर ले। अगर माइलस्टोन क्रिएट नहीं करता तो आपने प्रोजेक्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। माइलस्टोन का क्रिएट होना इसकी सबूत है कि वो रियल है, तो आप बाद में काम कर सकते हैं। अच्छा, मसला क्या है कि क्यों आपको माइलस्टोन के बाद प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $100 की जो प्रोजेक्ट है, आप बग़ैर माइलस्टोन के आप एक्सेप्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली फ्रीलांसर अपनी चार्जेस ले लेता है। मतलब अगर $100 में से 10% फ्रीलांसर का है, जो कि -$10 आपका शो हो जाता है, ठीक है, अकाउंट में। आप फिर परेशान होते हैं, अभी तक मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया हुआ है कि क्यों मुझे मतलब $100 के बजाय मुझे -$10 क्यों दिखाई दे रहा है। तो आप इससे परेशान ना हो अगर माइलस्टोन क्रिएटेड है, क्योंकि बाद में फिर आपको $100 मिल जाएगा और -10 के साथ वो कट जाएगा, जो $90 आपको फिर मिल जाएगा। लेकिन जिस बंदे ने माइलस्टोन क्रिएट नहीं किया है, आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो माइनस होगा, लेकिन बाद में वो आपको माइलस्टोन भी नहीं देगा, तो आपका डबल नुकसान होगा। तो ये 3 फ़िलहाल जो स्कैम हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है, आपकी करियर को तबाह बर्बाद कर सकता है, आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपके जहन में नेगेटिव असरात डाल सकता है कि फ्रीलांसर फेक है, स्कैम है, मतलब जो भी आप सोचते हैं नेगेटिव उसके बारे में, तो ये चीज़ें फिर आपके आंखों के सामने फिर आएगा। मतलब आपने क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंट वर्क भी करना है, ठीक है, या स्मार्ट वर्क भी करना है, और साथ साथ चीज़ों को आपने समझना है। समझ के जब आप काम करेंगे तो फ्रीलांसर में कभी भी आपको स्कैम नहीं होगा, कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप विन करेंगे, आप अर्न करेंगे, आप खुशी खुशी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब फ़र्स्ट, एक बार फिर मैं रिव्यू कर देता हूँ। फ़र्स्ट जो है, जब आपसे किसी भी क्लाइंट पैसे मांगता है तो मांगता है कि मुझे पैसे दे दो, सिक्योरिटी फ़ी के तौर पर आपने नहीं देना है। सेकंड, अगर क्लाइंट आपको आउटसाइड ऑफ द फ्रीलांसर कहते हैं मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको पैसे यहाँ पर फ्रीलांसर में ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो आपने कभी भी नहीं करना है। थर्ड, माइलस्टोन के बग़ैर कभी भी आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों के बारे में आप समझे होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और साथ साथ आपकी अर्निंग के लिए और भी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और टिप्स दूँगा, जिसमें आप फ्रीलांसर एक मज़बूत और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव फ्रीलांसर बन सकते हैं। हमारा एक नया कोर्स भी है जो फ्रीलांसर के बारे में है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ें और जान सके तो उसकी भी कमेंट बॉक्स, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसको ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हम सब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं जमशेद रज़ा, फ्रीलांसर ट्यूटोरियल के जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।